اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ تلاوت کر کے عنوان بنانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں بہتر سمجھتا ہوں، بہتر ہی نہیں بلکہ انسب و مناسب اچھا سمجھتا ہوں۔ مدینہ محرم فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کے درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ تمام حضرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں منبر نور پہ مخزن علم و حکمت کاتی کفر ضلالت خطیب ایشیا و افریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی ظہور احمد مصباح صاحب قبلہ مدت اللہ علیہ نورانی کی ذات ہے۔ وہیں پر خوبصورت نقابت نقیب ہندوستان حافظ قاری صدام حسین ہمدم پر نبی کو سماعت کر رہے ہیں کہ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ کے کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے تمام فرشتے رسول خدا پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والے، تم بھی درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ جب ایمان والے سے کہا جاتا ہے، شورا آتے ہیں کہتے ہیں درود شریف پڑھیں، خطیب آتے ہیں کہتے ہیں خطبہ مسنونہ کے بعد جو ہے کہتے ہیں درود شریف پڑھیں، مگر درود شریف پڑھنے میں لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے میں پہلے آپ کو پہلی خطاب جو سماعت کر رہے ہیں تو پہلے جو ہے آپ کو یہ پیغام مل جائے کہ ہم درود شریف ہمہ وقت پڑھتے رہیں۔ جب علماء خطبہ شورا درود شریف پڑھنے کے لیے کہے تو ہم جو ہے نیکیوں سے بے شمار مالا مال ہوتے رہیں۔ اتنی نیکی ملتی ہے جن کی کوئی شمار نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کہیں گے کہ گنتی نہیں ہے، یہ عمل ایسا ہے، یہ نیکی ایسی ہے جس کی کوئی جو ہے شمار نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے۔ ہاں، میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین ایک مرتبہ آئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو رب کا فرمان لے کے آتا ہے۔ نبی نے فرمایا، چونکہ غیبدار نبی ہے، غیب کی خبر رکھنے والے نبی ہیں، سمجھ گئے کہ جبرائیل کے تیور الگ ہیں، آج اس کا انداز الگ ہے، آج ان کا جو ہے طریقہ الگ ہے، ان کی شکل الگ ہے، ان کے طریقے الگ ہیں۔ میرے نبی سمجھ گئے جبرائیل امین آیا ہے، آج اس کا انداز الگ ہے۔ میرے نبی جو ہے سکوت اختیار کیے، جبرائیل امین جو ہے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ خاموش ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آج میں کچھ لے کے نہیں آیا ہوں، میں تو کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، کچھ اچھی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کوئی مقصد لے کے آیا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں کہ تم کون سے مقصد کو لے کے آیا ہے، کون کی خواہش کو لے کے آیا ہے، تیرے دل کی راز کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، اس بات کو لے کے آیا ہوں، پروردگار عالم کی ایک صفتی نام کو قوی ہے، یعنی طاقتور ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں، آپ کے چرنوں کے نیچے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت دی ہے، میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا، کچھ بھی کر سکتا ہے؟ ایسا معاملہ ہے۔ جب نبی کے فرمان کو سنا، حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہاں، رب نے مجھے طاقت دی ہے، میں عطائی طاقت سے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ تو پہلے ہی نبی کو خبر ہے کہ جبرائیل آیا ہے، کیا مقصد لے کے آیا ہے، کیا خواہش لے کے آیا ہے، کیا درخواست لے کے آیا ہے، کیا کہنے کے لیے آیا ہے، کیا سنانے کے لیے آیا ہے۔ نبی کو تو پہلے ہی معلوم ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب اپنے علم غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، جس رسول پر راضی ہو جاتا ہے اسے علم غیب عطا کرتا ہے۔ بابا تیرے نبی غیب نبی، غیب کی خبر رکھنے والے
जान रहे हैं, मगर दुनिया वाले को बताना मकसूद है। दुनिया वाले समझ जाओ कि मुस्तफा को भी इल्म गैब है, नबी को भी जो है पीठ पीछे की खबर है। इसलिए जिब्राइल अमीन नबी की बारगाह में आए, अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, रब ने मुझे ताकत दी है, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। नबी ने फरमाया कुछ भी कर सकता है तो फिर बताओ क्या कर सकता है। हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर मैं चाहूं तो आसमान के सितारे पलक झपकते गिन के शुमार कर सकता हूं, कितने सितारे हैं गिनती कर सकता हूं। नबी ने फरमाया और आगे बोलो। जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर मैं चाहूं तो दुनिया के अंदर जमीन के ऊपर रब ने जितने दरख्त पैदा किया है उन दरख्तों के पत्ते को शुमार कर सकता हूं। हर दरख्त के पत्ते कितने हैं उसको शुमार कर सकता हूं। नबी ने फरमाया अच्छा, पलक झपकते हुए आंखों को बंद करके खोल ले, इतनी देरी में इतने वक्त में तू इन पत्ते को शुमार कर सकता है। नबी ने फरमाया और आगे बोलो। जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर मैं चाहूं 61 दरिया रब ने पैदा किया है, उन दरिया के कतरे को चाहूं तो मैं शुमार करके बता सकता हूं। नबी ने फरमाया और आगे बोलो। जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर मैं चाहूं तो रेत यानी बालू की जो है गिनती यानी शुमार करके बता सकता हूं। नबी ने फरमाया इतनी ताकत है, तुमको रब ने इतनी ताकत दी है। और आगे बोलो क्या क्या कर सकते हो। जिब्राइल अमीन की जबान बंद हो गई, खामोश हो गए। नबी ने फरमाया जिब्राइल खामोश क्यों है, आखिर तुम्हारी जबान क्यों बंद हो गई है। हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे, सर को झुकाया, मुस्तफा के चरणों को चूमा, कदम मुबारक को चूमा और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं सारी चीजों को गिन सकता हूं जो बंदा, जो तेरी उम्मत, तेरा आशिक तेरी बारगाह में दरूद शरीफ तहे दिल से पढ़ेगा, उस दरूद शरीफ की नेकी मैं लिख नहीं सकता। अल्लाह कितनी नेकी अता फरमाएगा, उन नेकियों को लिख नहीं पाता। मुसलमानों, शायर आता है, कहते हैं दरूद शरीफ पढ़े, तो दरूद शरीफ पढ़ने में मुखालत करते हैं। नबी ने फरमाया जहां मेरा जिक्र किया जाए और वहां बंदा मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ने से मुखालत करे तो सबसे बड़ा बखील वो है दुनिया में। मुसलमानों, आज हम बखील उसे कहते हैं जो खर्च कम करे, जो फजूलियात से बाज आए, उसे जो है हम बखील नहीं कहते, यानी जो खर्च करने में कंजूसी करे उसे बखील कहते हैं। मगर यहाँ मिजाज देखें जिब्राइल अमीन का, प्यारे नबी की गुफ्तगू का अंदाज और सबक इससे हासिल करें कि बखील वो है जो मुस्तफा पर दरूद न पढ़े। नबी ने इरशाद फरमाया है कि जब तक मेरी बारगाह में कोई बंदा दरूद शरीफ नहीं पढ़ेगा, अल्लाह ताला उनकी इबादतों को कबूल नहीं करता है। मुसलमानों, आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़हूर अहमद मिसबाही साहब किबला ने जो है इस दारुल उलूम की तरक्की के लिए और यहाँ के तालीम के लिए ये सालाना जलसा, छठा सालाना जलसा जो है इनेकाद किया है। बहुत दूर दराज से मकामी और बिरूनी उलमा खुतबा तशरीफ लाए हैं, जिनके खिताब नायाब से आप तमाम हज़रात मौजूद होंगे और दुआ करेंगे। परवरदिगार आलम, हमारे इलाके में कोई इदारा नहीं है, एक तो यही इदारा कायम किया गया है। इस इदारे को, इस मदरसे को, इस जामिया को अल्लाह तबारक व तआला मरकजी शक्ल में लेके आ जाए। मैं भी दुआ करूं, आप भी दुआ करें, ताकि हमारे सीमांचल नहीं बल्कि हमारे इस इलाके में ये इदारा तरक्की पर हो तो हमारे बच्चे के अंदर भी तरक्की होगी। वो तरक्की कौन सी होगी? वो तरक्की होगी वो इल्म हासिल करने के बाद जो है उसे सीधा रास्ता मिलेगा, उन्हें हलाल और हराम की तमीज आएगी। यही दारुल उलूम है, यही मदरसा है जहाँ से बच्चे पढ़ के जो है वो हराम और हलाल की तमीज करते हैं। हराम और हलाल की तमीज करने के मुतालिक जब बात आई तो बता दो, इल्म हासिल करना उतना ही फर्ज है जिससे हराम और हलाल की तमीज आ जाए। हराम और हलाल की तमीज आ जाए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको अगर पूछा जाए, ऐ हमारे गैर मुसलमानों सुन लो कि आज हम जो है सिकमा खाते हैं, ओजड़ी खाते हैं, क्या ये हलाल है या हराम है? जो अहले इल्म है तो कहेंगे कि फला फला चीज जो है हराम है गाय के अंदर, तो यही इल्म है। जब तक हमारे अंदर इल्म नहीं होगा तो सिकमा जो है नहीं छोड़ेंगे। मगर इंसान जो लज्जत को पाकर जो है कभी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। कितनों भी फतवानोशी हो जाए, मुफ्ती जो है कितनों फतवानोशी कर ले, मगर इंसान बाज आने वाले नहीं है। इस तरह है जैसे कुत्ते की दुम जो है टेढ़ी की टेढ़ी है। हर आए दिन बाजो नसीहत की बातें सुनते हैं मगर इंसान के अंदर असर नहीं है। मुसलमानों, बेखबर खेत हो तो सिंचाई से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। अमल वाला दिल बना
नजर आएंगे, अमल करते हुए नजर आएंगे। मुसलमानों, मैंने तिलावत किया कि अल्लाह के कायनात इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उनके तमाम फरिश्ते रसूल खुदा पर दरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वाले, तुम भी दरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम भेजो। ये बंदगी, ये इबादत, ये नेक काम ऐसा है जिसको फरिश्ते भी लिखने से जो है माजूर हो जाता है, मजबूर हो जाता है। उनको रजिस्टर नहीं मिलते कि मैं इसकी नेकी को लिखूं। मुसलमानों, इसलिए मैंने उन्वान लिया है, कोई भी शायर आए, कोई भी खतीब आए, दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहे तो बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ लेना, ताकि मुस्तफा जाने मोहम्मद की मुबारक रूह खुश हो जाए। शायर कहता है, पढ़ूं जो सुबह मसा दरूद शरीफ, पढ़ूं जो सुबह मसा दरूद शरीफ, तो खुद सुनेंगे रसूल खुदा दरूद शरीफ। देखा जो एक आशिक ने कब्र में, देखा जो एक आशिक ने अपनी कब्र में, तो झूम झूम के पढ़ने लगा दरूद शरीफ। हज़रत, मैं उन्वान से हट के एक बात बता के रुखसत हो जाऊं। मैं ज्यादा टाइम लेके जो है वक्त को बर्बाद करना नहीं चाहता। अज़मत वालिदैन से मुताल्लिक आज उलमा तकरीर करते हैं, सिर्फ हुकूकुल इबाद में, हुकूकुल्लाह जो अल्लाह का हक है अदा करना है, हुकूकुल इबाद यानी बंदे का हक है। बंदों में माँ और बाप का भी हक है, बेटे और माँ बाप का हक है, वालिदैन का भी हक है और औलाद का भी हक है। उलमा इकराम अक्सरियत के साथ माँ बाप की अजमत को बयान करते हैं, वहीं पर अगर औलाद के हुकूक को बयान कर दे, वहीं पर औलाद के हुकूक को बयान कर दे, तो यकीनन इंसान जो है छोटे से शफकत करने लगेंगे और बड़ों का एहतराम करने लगेंगे। क्या बात है, जिंदाबाद। जब बड़ों की तारीफ होती है, देखिए मैं तनकीदी निगाह से नहीं, माँ बाप के दर्जे को रब ने बहुत बुलंद अता फरमाया है, जिसका खुलासा नबी ने फरमाया है कि रबी अल्लाह फी रबील वालिदैन, सखत अल्लाह फी सखतिल वालिदैन। अल्लाह की रज़ामंदी माँ बाप की रज़ामंदी में है, अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है, माँ बाप की नाराजगी में है। नबी ने तो फरमा दिया है, मगर वही तो नबी ने यह भी फरमाया है, ऐ मेरे दीवानों, ऐ मेरे चाहने वालों, अगर छोटा है तो शफकत करो, बड़ा है तो एहतराम करो, और जो ये काम न करे वो हम में से नहीं है, बेशक वो हम में से नहीं है। इसलिए मुसलमानों, मैं आपको एक बात बताना ये चाह रहा हूँ, आपका बेटा है, उस बेटे को अगर रे कहेंगे तो वो आपको अब्बा नहीं कहेगा, है कहेगा, ठीक है। मैं जाती हिसाब से जो है ये चुलिया दे रहा हूँ, जिस हिसाब से इस्लाम के पैगाम आपके दिलों में जाके व्यवस्था कर जाए, बातों में असर हो जाए, उसी तरीके से समझाना हमारा जो है फर्ज बनता है। और नहीं तो मैं अरबी में बोलता जाऊं और फारसी में बोलता जाऊं, लोग समझे नहीं तो फिर तकरीर करने का मसला हल ही नहीं होगा। इसलिए आप अगर बच्चे को जो है कहेंगे बेटा तो वो अब्बा कहेगा, उसे रे कहेंगे तो वो है कहेगा, बच्चे आप बाप हैं, पता चलता वहीं पर कि औलाद का भी हक दिया जाए, बेटा कहा जाए, बेटा है तो बेटा कहा जाए, ताकि जो है वो बेटा अब्बा कहकर पुकारे। यहीं से पता चल गया कि औलाद का भी हक है और माँ बाप का भी हक है। एक बात और बता दूं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, क्या बात, अबुल बशर है कि नहीं, बेशक सबके बाप है कि नहीं, बोलिए अबुल बशर है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार किया, मगर सबसे पहले नबी के नूर को बना के अपने पास में रखा, कुल खास में रखा। आपने वाकया बहुत सुना है, मगर ये महीना जो रजबुल मुरज्जब का महीना है, इसमें तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स भी मनाया गया। आज जो है 22 रजब की तारीख गुजर गई, 23वीं शब है, इसमें भी इमाम जाफर सादिक के नाम पर कोंडे की फातिहा, मगर उलमाए रब्बानी का इत्तिफाक है कि 15 को हज़रत इमाम जाफर सादिक को वसाल फरमाए, इसलिए 15 बेहतर है, 15 रजबुल मुरज्जब बेहतर है। आज भी अगर कर ले कोई मुसाइका नहीं है, कोई हद नहीं है, बल्कि कारे खैर है, सवाब है। और यहीं पर आगे बढ़े तो इस महीने की 27वीं शब को मेरे नबी मेराज तशरीफ ले गए, रब्बे कदीर से राज और नियाज की बातें हुई। अब मैं बताऊं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, अबुल बशर है, यानी कि तमाम बशर के, तमाम इंसानों के बाप है, वही आदम अलैहिस्सलाम है। एक मर्तबा बीमार पड़े, जब इंसान बीमार पड़ता है, बीमार पड़ने के बाद उन्हें तरह तरह की ख्वाहिश होती है, ये खाऊं वो खाऊं, हर तरह की ख्वाहिश होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीमारी के आलम में ये कहने लगे, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरी औलादो, मुझे फला फला चीज खाने की ख्वाहिश है, मैं खाने की ख्वाहिश जाहिर की हूँ और तुम लोग हासिल कर दो। सारे के सारे बेटे चले गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फरमान को सुनकर कोई सेब लेके आया, कोई अंगूर लेके आया, कोई काजू लेके आया, कोई किशमिश लेके आया, कोई खजूर लेके आया,
शीश अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा जान इसलिए रो रहा हूँ, सारे बेटे आपकी ख्वाहिशों का एहतराम किया है, हुक्म पर अमल किया है, मगर मैं फल फ्रूट लेके नहीं आ पाया, इसी बात को लेके मैं रो रहा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, बेटा खुश हो जा, इसलिए कि जिसका बाप खुश होता है तो रसूल पाक भी खुश होता है, रब भी खुश होता है। ऐ मेरे बेटे खुश हो जा, तेरा भाई दुनिया का फल लाया है और तूने अपने बाप आदम के हाथ पांव सर को दबाया है, खिदमत किया है, तीमारदारी किया है, इसके बदले में रब तबारक व तआला तुझे जन्नत से फल भेज देगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुझे जन्नत से फल भेज देगा। ये कहकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा तुम सब्र करो और खुश हो जाओ, इसलिए कि तुम्हें जो है एक रब तबारक व तआला बेहतरीन जन्नती हूर तुम्हारी बीवी अता करने वाला है। मेरे बेटे खुश हो जाओ, देखो रोना धोना बंद करो और तुम खुश हो जाओ, चेहरे पर खुशी के आधार लेके आओ। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम खुश हो गए। आदम ने फरमाया, फलाने पहाड़ की तरफ जाओ बेटा, और वहां एक सुरंग होगा और वहां जाने के बाद अंदर दाखिल होगे तो एक पर्दापोश खातून मिलेगी, उसके सर पर एक नूरानी थाल होगा, उस थाल में हर तरह के फल होंगे, मगर तुम वहां से लौटना नहीं, मैं पीछे पीछे तुम्हारे भाई को लेके आ रहा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो ही फरमाया, शीश अलैहिस्सलाम पहाड़ की सुरंग पे गए और जाने के बाद दाखिल हो गए। दाखिल होने के बाद देख रहे हैं सही माने में एक हूर है, एक पर्दापोश खातून है, जिसके सर पर एक नूरानी थाल है, उसमें फल भरे हुए हैं, मगर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम चूंकि एक नबी की औलाद है, नबी का बेटा है, सोचा अजनबी औरत के सामने अजनबी मर्द को रहना हलाल नहीं, बेशक हलाल नहीं है। इसलिए मुसलमानों, जब हराम और हलाल की बात आई तो आप इल्म हासिल करेंगे तो वहां तमीज आ जाएगी किससे हमें जो है कौन सी औरत हमारे लिए हलाल है, कौन सी औरत हमारे लिए हराम है। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम सोचने लगे, दिल ने कहा, शीश तू तो यहाँ सुरंग के अंदर दाखिल हो गया, मगर ये औरत है, पर्दापोश जरूर है, ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। खलवत में, तन्हाई में मर्द और औरत का रहना बगैर निकाह के जायज नहीं है, बेशक जायज नहीं है। इसलिए ऐ शीश तुम यहाँ से चले जाओ, यानी वापस लौट जाओ। अभी वापस लौटने ही वाले थे, देख रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हम अपने तमाम बेटों को लेके हाजिर आ रहे हैं। पूछा, बेटा मैंने कहा था रुक जाना, मगर तुम रुके नहीं, इतनी जल्दी ही क्या है। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अब्बा जान एक अजनबी औरत के सामने मर्द को रहना, अजनबी मर्द को रहना हलाल नहीं है, इसलिए इस बातों को सोचकर मैं वापस लौटा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा वो अजनबी औरत नहीं, तुमने बाप की खिदमत की है, पाँव को दबाया है, सर को दबाया है, हाथ को दबाया है, खिदमत किया है, तीमारदारी किया है। ऐ मेरे बेटे, यही तीमारदारी की वजह से रब तबारक व तआला ने तुम्हारी लिए जन्नत से हूर भेज दिया है। वो कोई आम औरत नहीं है, जन्नती हूर तुम्हारी बीवी है, बाप की खिदमत करने की वजह से, बेशक बेशक बाप की खिदमत करने की वजह से ये तुम्हारी जन्नती हूर बीवी है। और तू जो फल के मालिक सोच रहा था, ये जन्नती फल रब तबारक व तआला ने भेजा, बस इस जन्नती हूर के साथ तेरा निकाह हो जाए और वलीमा मसनूना के तहत जो है वो फल रब ने जन्नती भेज दिया है अपने भाइयों को खिलाओ वलीमा मसनूना के तहत, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी हो जाए, खुश हो जाए। मुसलमानों, देखा आपने, बाप की खिदमत करने में दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में भी भलाई है, और जन्नती हूर भी बीवी बनेगी। मुसलमानों, ये बाप की खिदमत है, माँ की भी खिदमत है, वहीं पर बच्चे की भी खिदमत है। क्योंकि औरत है तो औरत बच्चे के साथ शफकत करे, बाप है तो प्यार करे, दोनों तरफ से जो है हक है। एक ऐसी बात नहीं है कि बाप की तारीफ कर दिए, अजमत वालिदैन सुन लिए तो बच्चे को जो भी चाहे कह दे, नहीं, बल्कि बच्चे का भी ख्याल रखना है, उनके हुकूक का भी ख्याल रखना है। वो तो नहीं कि औलाद के हुकूक क्या होते हैं, मैं इंशाअल्लाह कभी जिंदगी बाकी रही तो औलाद के हुकूक से मुताल्लिक जो है गुफ्तगू करूंगा। बस यही दारुल उलूम जामिया निजामुद्दीन ज़ुहरुल उलूम के इहाते से आपको एक पैगाम मिलेगा। बेशक वाह वाह वाह, कि औलाद का हक क्या है, माँ बाप का हक क्या है। बस यही पर जो है मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ, चूंकि टाइम बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला दिल को देखता है, दिल को देखता है। जब कारे खैर की बात आती है तो ये पैसा आपका किसी और कामों में नहीं लगेगा। जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, इसी पाक कामों में आपका पैसा लगेगा। वो बच्चा जब चले तो फरिश्ते नूरानी पर बिछा दे, क्या बात है, वाह वाह वाह, नूरानी पर बिछा दे। जिस कब्र
بے شک واہ ان واہ واہ بچے کی جو ہے علم حاصل کرنے اور ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی علی احمد مظفر صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا شمیم رضا ضلع پریشد امور بیسا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت فرمائے پڑھ لیجئے تو بے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ، ذرا بلند آواز سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔